Hello everyone. Some stories are written loudly and some are written in silence. Unsaid verses came into light belong to the latter. A book that speaks for emotions we often really carry but rarely express. Today, we are speaking with its author to understand the hurt behind those unspoken words. So, welcome, Janil, in our podcast. So, it's time to you Thank you to so much. introduce you. Thank you so much, sir. My name is Jahin Lekhwani, and I'm pursuing BPharm. I'm a third year BPharm student, and I stay in Ambala, Mumbai. So, the unspoken verses, the unspoken efforts, what a man faces in his life, what are the struggles behind it? I want to depict those struggles. वो किस तरह से जूझता है अपने काम और उस काम के लिए उसको कभी अप्रिसिएशन नहीं बिल्कुल. ये कंसर्न है बिकॉज nowadays everyone's speaking about the mental health आजकल हर कोई मेंटल हेल्थ की बात करता है लेकिन उस मेंटल हेल्थ में ये भी देखना है कि हर कोई इक्वल होना चाहिए जितना सहारा आज के टाइम पे सबको मिल रहा है उतना मेन कल्चर को भी मिलना चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो द वंस हु इज अर्निंग फॉर देयर फैमिली अपने फैमिली के लिए अर्न कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए अर्न कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए लेकिन उसके पीछे ये कोई नहीं देख रहा है कि मेंटली वो कितना स्ट्रगल कर रहा है एग्जैक्टली. सो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ, दिस इज नॉट ओनली द नॉवेल लव लाइक अ love novel, but it is a book which is talking about the unspoken pain as well. Okay, silent yes sacrifice done by the person and the inner world of the man as well. Okay, actually so you covered, I think you tried to describe it with the form of a novel. So, Chanel, what are the main characters that you have in your book? so the main characters first of all I would introduce you to Shivai who is a guy जिसके कई सपने Okay. बट बीइंग एज अ एल्डर सन काफी सारी चीजें ऐसी रहती है जो बहुत हैंडल करती है Mhm. he is a responsible guy he's a good brother he's a good son he's working hard for his dreams and managing his studies as well he's having a dream to achieve something bigger and better in his writing he's good in writing he gets an opportunity उसके कॉलेज के थ्रू इसे अपॉर्चुनिटी मिलती है एक कॉन्टेस्ट के थ्रू जो कि एक बहुत बड़े पब्लिशर्स इट्स नेम उसका नाम है बाउंडलेस मैन्युस्क्रिप्ट द Okay. पब्लिशिंग हाउस इज द बाउंडलेस मैन्युस्क्रिप्ट्स जिसका मेन ओनर द मेन हेड इज अमृत धलीवाल Mhm. अमृत धलीवाल इज अ रियोन राइटर मैंने अमृत को इस तरह से दिखाया है कि ही इज अ रियोन राइटर जिसने फिल्म राइटिंग में भी अपना एक्सपीरियंस दिया था Okay. एंड नाउ ही हैज ओपन्ड हिज ओन पब्लिशिंग हाउस और उसके बाद आती है धनश्री Mhm. धनश्री is Shiva's best friend, partner, the love, every. And उसके बाद आती है तनम, Mhm. Shiva's sister, Shiva's younger sister. इसने उसको appreciate किया है उसके हर कदम पे. And after that, the three pillars of Shiva. जैसे जिसको the boys कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल. कार्तिक, अंशुमन और मुकुंद. Okay. ये तीन दोस्त. तो ये हमारी थ्री इडियट्स वाली जोड़ी हो गई एक तरीके से कहा जाए ये. हाँ थ्री इडियट्स तो उसके शिवाय के साथ जो थ्री इडियट्स थे उनके साथ ही थे। बिल्कुल बिल्कुल. यही पूरी कहानी है इसमें एंड उसके बाद आती है मीना शिवाय मदर जो शिवाय को हर टाइम सपोर्ट करती है माँ का काम यही रहता है कि अपने बेटे को हर टाइम उसको देखते रहना उसको सपोर्ट करना उसके हर सपने फिर आते हैं मेजर रंजीत शिवाय फादर वो who passed away who got martyred in an operation तो मैंने पहले चैप्टर में ही बेसिकली पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया था रंजीत का एंड आफ्टर दैट इन बिट्स एंड पीसेस हाउ रंजीत वाज रिप्रेजेंटेड बाय हिज फ्रेंड्स Mhm. one of his friends was Satbir Singh Okay, okay.
was the owner of the restaurant and Ranji's closest friend. And then आती है निया. निया is Dhanashri's sister और वो शिवाय को भी अपना भाई मानती है. Yes. तो ये सारे characters हैं जो Nice. इस पूरे book को complete करते हैं. Okay, that's nice. So you had explained, मतलब आपने सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात किया है and what they belongs to each other, what the relation they hold. Okay, लेकिन एक बात आती है चैनल, हमारे पास रिलेशंस होते हैं. Everybody talk about how are you, okay, but nobody talks about how you feel. So that's the Yes. difference. How are you and how you feel. तो इस पे कुछ बात करना चाहेंगे आप? So, how are you and how you feel के बीच में पतला सा एक कहते हैं ना, एक पतला धागा, एक पतले डोर जितना ही फर्क है. How are you मतलब तुम कैसे हो, but how you feel that denotes everything that what are you feeling inside. आजकल हर कोई पूछेगा कि तुम कैसे हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम क्या महसूस कर रहे हो. बिल्कुल 10 में से अगर कोई एक या दो लोगों ने भी पूछ लिया था तुम क्या महसूस कर रहे हो तो उसमें दिन बच जाए. बिल्कुल. लेकिन हर कोई पूछता ही है कि तुम कैसे हो. Agree. That's why. This is फर्क है. This is a small and a very minute difference And which we have to understand क्या हो रहा है. and आपका जो टाइटल भी है, I think somehow relate करता है उससे. So why you have chosen that particular title? So the title Unspoken Verses Came to Life. ये ऐसी चीज है, ऐसा नाम है जो सब कुछ कहता है. लेकिन the thing is what you feel inside that matters the most. But हम किसको बताएं ये भी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. चाहते तो हम लोग सब कुछ है, लेकिन कभी कोई पूछने वाला नहीं होता जिसको हम लोग बता सके कि हम लोग क्या महसूस करते हैं. That's why the title is named as Sunset versus Came into Life, because these are the verses, these are the things which we can't say. Finally वो जब सामने कब आता है जब कोई आके पूछता है कि what are you feeling from it. Yes. So अगर हम बात करेंगे इसके कोर इमोशनल थीम पे, तो we will consider as a romantic novel और Yes. okay. So वो एंगल थोड़ा समझाएं, वो एंगल कहाँ से आता है, जो लव का एक एंगल आपने बुक में डाला हुआ है. वो एंगल आता है शिवाय के एफर्ट्स से और धनश्री के रियलाइजेशन से. Okay. And there is one more character, sorry अभी याद है, there is one more character named Harshit, Yes. which is Shiva's rival. Harshit is like so manipulative कि वो धनश्री तक को भी मैनिपुलेट कर देता है. बट इसमें अभी लव का रिप्रेजेंटेशन आता है हाउ जस्ट बिकॉज ऑफ शिवाय's efforts, शिवाय के सैक्रिफाइसेस, शिवाय के एफर्ट्स, जो कुछ भी बुक में मैंने दिखाए हैं वो ही दिखाता है कि हाउ शिवाय ट्रूली लव्स धनश्री. ओके. सो दैट्स नाइस. मतलब ये एक थोड़ी थोड़ी सी मिस्ट्री बनते हुए लोगों को एक आकर्षित करेगी कि दे मस्ट गो एंड रीड दिस बुक. आपने अपनी बुक में इमोशंस के बारे में बात किया है, मैस्कुलिनिटी के बारे में बात किया हुआ है, तो थोड़ा सा हम उस पर बात करते हैं. राइट सर. तो क्या इमोशंस और मैस्कुलिनिटी को हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि मेंस के साथ में लोग उतना नहीं अटैच कर पाते इमोशनली या इमोशनली अटैच कर पाते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई अटैच नहीं करता, अटैच सब कर पाते हैं. बट थिंग इज कि जरूरत पड़ने पर कोई सामने नहीं है. बिल्कुल. अक्सर ऐसा देखा गया है कि व्हाट वी डू वो सामने वाले के लिए क्या रहता है कि हाँ यार हमारे लिए कोई आ रहा है, ही इज हेल्पिंग मी. देन उसके बाद क्या हो रहा है, उसका हेल्प हो गया, उसको जो करना था उसने कर दिया, देन ही मूव्स अप. बट व्हाट अबाउट द मैन, व्हाट अबाउट द गाय हु हेल्प हिम और हर, जब उसे जरूरत पड़ती है तब कोई आता है, देन तब उस वक्त देन ही हैज टू सर्वाइव अलोन, ही हैज टू स्ट्रगल अलोन. ओके. एंड दिस इज द रियलिटी. यस. दिस इज द रियलिटी एंड जो हम अभी भी फेस कर रहे हैं.
बिल्कुल। और यहीं से एक एंगल आता है हमारा मेंटल हेल्थ वाला, जिसके ऊपर यस। लोग बहुत कम बात करना चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ लोगों को एक्चुअली पता भी कई बार नहीं होता है कि व्हाट इज़ अ मेंटल हेल्थ, और वो कैसे उनके लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है। यस। तो थोड़ा अगर हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, या आपकी राइटिंग स्किल के बारे में बात करें, या सिवाय के कैरेक्टर के बारे में हम बात करें, तो मेंटल हेल्थ का स्कोप कहाँ पे दिख रहा है, किस तरीके से, हाउ मेंटली ही वॉज स्ट्रॉन्ग। शिवाय was mentally strong because of his dad रंजीत। रंजीत के जाने के बाद शिवाय पूरी तरह से like he's totally broken, but although he was totally broken just because after Dhanashri leaves him, just because of the manipulation Rashid did। शिवाय और धनश्री दोनों जानते थे कि रशिद किस तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। स्टिल धनश्री went towards रशिद। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है, शिवाय को मेंटली बर्दाश्त नहीं होता था बिकॉज ऑलरेडी एक चीज बहुत बड़ी हो चुकी थी कि लॉस्ट हिज फादर, एंड उसके बाद उसके आंखों के सामने धनश्री मैनिपुलेट हो जाती है। तो किसी का क्लोज एक झटके से दूर चले जाना तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल एग्री। और यहाँ पे तो शिवाय के साथ तो जो दो क्लोज थे उसके वो ही चले गए। तो यहाँ पे धनिश्री के साथ ब्रेकअप का भी सीन आ रहा है क्या? ऑफ कोर्स आता है। ओके। मैं हर चीज़ तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि हर चीज़ जानने के लिए लोगों को बुक को पढ़ना चाहिए, तो ऑफ कोर्स सस्पेंस को थोड़ा सा मेंटेन रखते हुए